Okay, are you able to view this? Okay, up to which portion we have completed? Can anybody tell me? Up to which portion we have completed? What we have seen in the last lecture, or up to the in this chapter, what we have seen till date? What we have seen in this lecture, in this chapter till date? Can anybody tell me? We have seen the different properties of routing. We have seen the for the routing the packets. What are the services are were normally used? That is connectionless and connection oriented service, or you can say communication services. Also, we have seen the one algorithm already. We have seen that algorithm is shortest path routing algorithm. Clear? So in that also we have, yeah, in that also we have solved one problem also. So if in exam, if it is an MCQ based, then it's okay. But if it is handwritten agar hua theory paper, then it will be like if somebody asks you about the in the exam, if they given you the one network and asks you for solving that network, are you able to solve that one? Are you able to solve that one? Yes or no? Agar no, then tell me, I'll explain again that network. Did you understand whatever I have explained in the last lecture? Yes. So question for you. Question for you. So that ये मेरे लिए है, ठीक है? आप मेरे लिए है कि at least मुझे confirmation चाहिए. Clear? See here, to reach to the G, we have to reach to the G. अगर आप देख रहे हो top डायग्राम, तो मैंने कौन सा पाथ लिया था? E to G, ठीक है? उसके बाद H लेने के लिए मैंने G to H ले सकती थी, बट मैंने ये क्यों डिस्कार्ड किया? Why I have discarded this part and we have chosen this path, B to E, E to F and F to H. Second diagram. Why I have chosen the path? Why I have discarded this path, E to G का? Why after that, after choosing this one, I have changed my mind and I have selected this path, B to E, E to F and F to H. G से H भी हम जा सकते थे ना? G से H भी हम जा सकते थे. Why I have discarded this part and I have chosen this path, B to E, E to F and F to H to reach to the H? Can anybody tell me? Can anybody tell me? Hello, ma'am. Yeah, बोलिए बेटा. हाँ अश्विनी बोलिए. If you go from E, G to H, then the distance will become 2, 2, 1, 4, 2 means 9. And if you go from E, F, H, then the distance will become 8. So we want a short path, that's why we choose that. Okay, so you must consider this thing, और आपके दिमाग में ये रखना कि आपने चूज किया हुआ पाथ भी गलत हो सकता है. इट मे हैपन कि आपने जो चूज किया है वो शॉर्टेस्ट ना हो. आप जितना आगे बढ़ोगे उतना पता चलता है ओके मैंने वो पाथ चूज किया था, आई हैव चूजन दैट रूट, बट मे बी अगर मैं ये चूज करती शायद इट मे बी द शॉर्टर वन. तो जितना आगे आप जाओगे, जितना लिंक आपको मिलेगा, उतना आपके लिए बेटर रहता है कि ओके फाइन. सो इट्स बेटर कि जब आप भी सॉल्व करते हो ना, तो आपको सोर्स पता रहता है, डेस्टिनेशन पता रहती है. तो इट्स बेटर फर्स्ट यू जस्ट आइडेंटिफाई विच इज द शॉर्टर वन. पहले आप खुद आइडेंटिफाई कर लो. आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आपको पता है ए टू डी के लिए रिच के लिए कितने पाथ से, ए बी सी डी, ए बी ई एफ एच डी, A G H D, A E G H D. So there are so many 3 to 5 to 6 routes are there to reach to the destination. तो उसका एक अलग से एक बार कैलकुलेट कर लीजिए. आफ्टर कैलकुलेशन उसके बाद सॉल्व इट. तो इसलिए क्या रहता है कि आपको भी कॉन्फिडेंस रहता है ओके आई वॉट एवर आई हैव चूजन दिस इज द करेक्ट वन. क्लियर? तो पहले मैन्युअली आप डिसाइड कर लीजिए ए डैश ए के बाद कौन सा रूट बेटर रहेगा, वो पहले आप डिसाइड कर लो मैन्युअली. उसके बाद आप
सॉल्व कीजिए प्रॉब्लम। क्लियर? नाउ टुडे वी मूव टू द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन इज द फ्लो बेस्ड राउटिंग। क्या होता है फ्लो बेस्ड राउटिंग? क्या होता है? अब क्या है, इट इज ऑल्सो डिजाइन बाय द डिजास्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम शॉर्टेस्ट पाथ ही लेते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ ही लेते हैं। ठीक है, इट इज नॉट अ डायनेमिक टाइप ऑफ एल्गोरिथम, इट इज स्टैटिक टाइप ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, तो स्टैटिक टाइप ऑफ एल्गोरिथम मीन्स व्हाट, कि जो पाथ आपने चूज किया, इफ इट इज रॉन्ग तो वी हैव टू गो फॉर द अदर। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे रहता है फ्लो बेस्ड राउटिंग पे, see here, I'll give you show you an example. This is a network. ठीक है, this is a network. We have to reach from M is your source, L is your destination. मैं बता रही हूँ, M is your source and L is your destination. Clear? So when M wants to transmit its packets to the L, तो इसको पता चला कि this link is having heavy load, heavy traffic. It may face heavy traffic while it will start transmitting its packet towards L. Clear? तो क्या करता है, it's better, क्योंकि अगर उसने ट्रैफिक में फंसा, that means what, packets may get lost in the network. Clear? और इसका भी होता है। Clear? That means what, again it will ask for the retransmit the packet. उससे क्या रहता है कि अब जब retransmit करते हो मल्टीपल पैकेट्स आप ट्रांसमिट करते हो, उससे क्या रहता है, उसका भी एक कॉपी बनता है क्या नहीं? अब जब retransmit करते हो तो उसमें मैक्सिमम बैंडविड्थ स्टिल इंक्रीजेस। तो आप लोग अभी बेटर क्या है, अगर आपको पता है कि जस्ट टेक एन एग्जांपल, टू रीच टू M to L, दिस इज योर शॉर्टर पाथ। मैं क्या बोल रही हूँ, फ्रॉम M से L तक जाने के लिए, इफ M to L is a shorter one, but this shortest path having heavy load, is better to choose the longer one, though it may be the without traffic. क्या बता रही हूँ फ्लो बेस्ड राउटिंग पे, कि अगर आपका शॉर्टेस्ट पाथ पे लोड ज्यादा है, ट्रैफिक है, इससे बेटर है कि वहाँ पे अगर वो ज्यादा लोड उस पे ले रहा है, तो इट्स बेटर कि आप वो पाथ चूज करो जिसपे जो लोड ज्यादा नहीं लेगा, दो इट मे बी द लॉन्गर वन एज कम्पेयर टू योर शॉर्टर वन। ठीक है, दिस इज नोन एज फ्लो बेस्ड राउटिंग। इक्वेशन 4 इज C equal to 1 upon म्यू सी माइनस लैम्डा। तो म्यू क्या रहता है, इज द मेन नंबर ऑफ अराइवल, मतलब कितने पैकेट्स पर सेकेंड ट्रांसमिट हुए। 1 by म्यू इज द पैकेट साइज एंड सी इज द व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द, कितना जो आप नेटवर्क, जो भी आप लिंक ये नेटवर्क से ट्रांसमिट कर रहे हैं, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दैट नेटवर्क। क्लियर? वो कितना ट्रांसमिट कर सकता है एट ए टाइम पर सेकेंड। क्लियर? बीट पर सेकेंड। दो you're having पैकेट साइज ऑफ 8 मेगाबिट पर सेकेंड। ठीक है, बट अगर आपका लाइन कैपेसिटी अगर 5 मेगाबिट है तो वो उतना कैरी नहीं कर सकता है क्या नहीं? तो इट्स बेटर टू डिवाइड द पैकेट इनटू स्मॉलर वन एंड देन ट्रांसमिट। क्लियर? सो दिस इज योर T equal to 1 upon म्यू सी माइनस लैम्डा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज फ्लो बेस्ड राउटिंग। ठीक है, तो डू वन थिंग, फ्लो बेस्ड राउटिंग का ये डायग्राम बना लीजिए एंड राइट डाउन द इक्वेशन, write down the equation of it. Ma'am, screen is not visible. Screen is not visible. Okay, I'm very sorry. Now it is visible. Yes, ma'am. आपको समझा क्या मैंने क्या बताया? तो स्क्रीन कब से विजिबल नहीं है? नेटवर्क दिखा था क्या आपको जब मैंने नेटवर्क दिखा रही थी? Yes. नेटवर्क दिखा था? ओके, या डू वन थिंग, ड्रॉ दिस डायग्राम एंड राइट डाउन दिस इक्वेशन। फ्लो पे समझ में आया? इट इज ऑल्सो कम्स अंडर योर शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, यहाँ पे भी हम शॉर्टेस्ट पाथ ही पहले सर्च करते हैं, बट अगर शॉर्टेस्ट पाथ पे अगर हेवी ट्रैफिक हो तो बेटर टू चूज द अदर वन टू रीच टू द डेस्टिनेशन, दो इट मे बी द लॉन्गर वन। क्लियर? तो दिस इज द वेरी सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया फ्लो बेस्ड राउटिंग। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड आप लिख सकते हो। And based on this, I have prepared this PPT very as per your marking scheme. Clear?
And one more thing, I have uploaded the chapter number 4. If you have the Google sheet of your study material, there I have uploaded the handwritten notes as well as chapter number 4, as well as the PPT of your chapter number 4 also. Okay. And one more thing, I was thinking about I have already discussed you about the taking your chapter number 4 test, but due to this, because many of you having the backlog exam, no? And that's why I have postponed it. I'll inform you when I'm going to, but at least you prepare, you study, clear? Over? Over, everyone? Shall I move to the next one? Yeah. Our next is distance vector routing. Write it down. Distance vector routing algorithm और प्रोटोकॉल. कोई भी क्वेश्चन पूछे, इसको हम डीवीआर प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, डीवीआर एल्गोरिदम भी बोलते हैं. एग्जाम में डीवीआर पूछा तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. तो यहाँ पे कहीं पे तो शॉर्ट फॉर्म भी लिख के रखो आप, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और डीवीआर एल्गोरिदम. क्लियर? नाउ if I'll divide this, मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल. क्लियर? तो डिस्टेंस मीन्स व्हाट, हम यहाँ पे क्या डिस्टेंस क्या मैप, कौन सा मैप करते हैं आप, आपका सोर्स से आपका डेस्टिनेशन का जो डिस्टेंस है यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है? यहाँ पे भी हम सबसे पहले शॉर्टेस्ट ही लेते हैं, बट बिफोर दैट नेटवर्क पे जो अवेलेबल है, जो अवेलेबल है, दैट डिस्टेंस वी आर गोइंग टू फाइंड कि ईच नोड से आपका डेस्टिनेशन का डिस्टेंस क्या है. ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या करते हो, अगर इफ देयर आर 5 नोड्स आर देयर, तो हर नोड को पता होना चाहिए कि उससे बाकी 4 का डिस्टेंस क्या है. ठीक है? तो यहाँ पे आप एवरी नोड का डिस्टेंस, एवरी नाइबरिंग नोड का डिस्टेंस आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो. ठीक है? अगर ए है तो ए अपना BCDE का, if it is having 4 neighboring nodes A का, so it is going to calculate its 4 neighboring nodes distance from it. Clear? So this is the distance. Vector क्यों? Because जब आप move करते हो packets, if when you are transmitting the packets, you have to follow one direction. You have to transmit your packets in one direction. If whatever the route you are going to choose, that's why it is direction comes under vector. So that's why the word comes here, vector. Clear? Routing. Anyhow, we have to use here the best route, best path, so that our packets get reach to the destination very fastly. Clear? Any protocol? So while using this DVR algorithm, we have some set of rules, and we are going to see that protocol ki kya hai actually. What are the rules if you are going to use this DVR? Clear? So this routing algorithm was defined by one of the researcher named as Bellman-Ford, and that's why this distance DVR algorithm is also known as Bellman-Ford or Ford-Fulkerson algorithm. ठीक है? तो इसको हम इस दोनों नाम से भी हम जानते हैं. अगर एग्जाम में पूछा गया डीवीआर के बदले बेलमन-फोर्ड और फोर्ड-फुकल्सन एल्गोरिथम, तो बोथ आर द सेम. राइट इट डाउन समवेयर. जस्ट राइट इट डाउन समवेयर. Write it down somewhere. It is also known as, this algorithm is also known as Bellman-Ford or Ford-Fulkerson algorithm. Yeah. Now, अभी इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो इससे बेटर है कि I'll go with the example. Clear? अब एग्जाम्पल एक लेते हैं हम.
ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, क्रिएटिंग दी टेबल एग्जाम्पल। ओके, अब डीवीआर आप क्यों यूज करते हो, सबसे पहले हमको बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सोर्स एंड देयर इज अ डेस्टिनेशन। अब सोर्स जब पैकेट ट्रांसमिट करता है डेस्टिनेशन, व्हेन सोर्स वांट्स टू ट्रांसमिट अ पैकेट टू द डेस्टिनेशन, so वो normally the source use so many routers, because in between source and destination there are so many routers are there which helps that packets to reach to the destination, clear। तो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, उस राउटर का डेस्टिनेशन के साथ लिंक, क्या बता रहे हैं हम, मैं बता रही हूँ, वो जो इंटरमीडिएट राउटर्स जो होते हैं बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम टू द डेस्टिनेशन, उसका जो डिस्टेंस है डेस्टिनेशन तक का, उसका हम रिलेशन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, वो उसका हम रिलेशन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या रहता है, स्टेप वन ये है कि सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं क्या है कि क्रिएटिंग टेबल एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं टेबल। वो टेबल क्या क्रिएट करते हैं, जस्ट सी हियर, दिस इज योर नेटवर्क, ठीक है, तो दिस इज योर नेटवर्क। अभी याद रखो कि आपका ये राउटर्स है ए बी सी डी, ये क्या है, राउटर्स है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन नहीं। अब ये क्या है आपका राउटर्स, मैंने क्या बताया था, बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन राउटर्स वी आर नॉर्मली यूज टू व्हिच हेल्प्स टू फॉरवर्ड दैट पैकेट्स टू द डेस्टिनेशन। तो हमने यहाँ पे क्या लिए, जस्ट टेक एन एग्जांपल, देयर आर 4 राउटर्स व्हिच इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, मे बी इंटरकनेक्टेड और नॉट इंटरकनेक्टेड, सबके साथ इंटरकनेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और इट बिटवीन द लिंक there it is and links are shown by using a solid line, ठीक है। and in between these two routers there a cost is written, और हम उसको cost भी बोल सकते हो, weight भी बोल सकते हो, distance भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हो, दिस इज द नेटवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, कि सबसे पहले मैंने क्या बताया यहाँ पे कि आपका यहाँ पे 4 राउटर्स हमने यूज किए नेटवर्क पे, उस राउटर का हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है वेट, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या था, क्रिएटिंग अ टेबल। वो टेबल क्या क्रिएट करते हो, वो टेबल क्या बताता है, शो यू। तो दिस इज योर 4 टेबल। 4 टेबल क्या है, ये ए का टेबल है, बी का टेबल है, सी का टेबल है, डी का टेबल है। ये टेबल को क्या बोलते हैं आप, हम इसको क्या बोलते हैं, राउटिंग टेबल। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, राउटिंग टेबल। नाउ व्हाट इज राउटिंग टेबल, नेक्स्ट क्वेश्चन comes in our mind is what is routing table। राउटिंग टेबल का मतलब होता है कि आपका अगर ए के साथ, अगर ए इज योर फर्स्ट राउटर, तो ए का डिस्टेंस रिमेनिंग 3 राउटर्स से कितना है, तो वो राउटिंग टेबल पे सेव स्टोर होता है। एंड दैट राउटिंग टेबल इज ट्रांसमिटेड इन डीवीआर। इन डीवीआर पे हम क्या करते हैं कि वो अगर ए का राउटिंग टेबल ये है, तो ए क्या करेगा, ओनली वो अपना राउटिंग टेबल नाइबरिंग नोड्स को ट्रांसमिट करता है, ना कि उस नोड को जो किसी के थ्रू जाता हो। जस्ट टेक एन एग्जांपल, सी इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ए, सी इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ए, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ नाइबरिंग नोड ऑफ ए, ठीक है। तो ए क्या करेगा, ओनली अपना राउटिंग टेबल डी एंड बी के साथ ही शेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, वो राउटिंग टेबल बनता कैसा है। दिस राउटिंग टेबल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग थ्री in that routing table 3 things are present। तो सबसे पहले क्या रहता है, तो अगर आप सबसे ए का देखिए, ठीक है, 2 क्या है, 2 मतलब ए से डिस्टेंस, 2 हो गया ए का, 2 हो गया डिस्टेंस, सॉरी डेस्टिनेशन, 2 हो गया डेस्टिनेशन, कहाँ जा रहा है, ए से डी को जा रहा है, ए से बी को जा रहा है, ए से सी को जा रहा है। कॉस्ट हो गया, जहाँ जा रहे हो, जहाँ पे डेस्टिनेशन ए जब जहाँ पे ट्रांसमिट कर रहा है उसका डिस्टेंस कितना हुआ। एंड नेक्स्ट मतलब हो गया इसका नेक्स्ट नोड क्या था, ठीक है। तो जस्ट टेक एन एग्जांपल, या ए का अभी मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, डिस्टेंस ए के साथ, ए से बी से, ए से डी तक, ए से सी तक, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ABCD लिखा क्योंकि हमें इन चारों नोड तक पहुंचना है। ए से ए का डिस्टेंस क्या रहेगा, 0, मुझे हमें ए को एक भी भेजना है, तो उसका कॉस्ट क्या हुआ, 0, ठीक है। ए से ए को ही भेजना है, तो हमने यहाँ पे क्या डाला, कॉस्ट 0। उसका नेक्स्ट क्या था, ए ही था, तो हमने ए डाला, ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्या है, ए से हमें बी को जाना है, ए से हमें बी को जाना है, उसका डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, कॉस्ट कितना है, 2, तो यहाँ पे कॉस्ट क्या लिखोगे, 2। तो ये हो गया डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन कहाँ तक था, बी को था। एंड नेक्स्ट नोड क्या था, ए के नेक्स्ट नोड क्या था, बी था, तो राइट इट डाउन बी। गेटिंग एवरीवन, एनी क्वेरी, एनी क्वेरी, एनी क्वेरी इन इट, yes or no? Okay, next।
अब क्या है, ए से हमें सी को जाना है, ए से हमें सी को जाना है, एज इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, तो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता इसका डिस्टेंस क्या है और कहाँ तक जाना है, हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्फिनिटी लिखेंगे, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट इज द डिस्टेंस, क्लियर। एंड उसका नेक्स्ट नोड क्या है, हमें वो भी नहीं पता, क्योंकि कहाँ से जाना है वो भी हमें नहीं पता, कहाँ से जाना है हमें वो भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डैश लिखेंगे, क्लिक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ए से हमें डी तक जाना है, ए से हमें डी तक, डेस्टिनेशन इज डी, तो यू राइट इट डाउन डी, क्लियर। एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इट, 1, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट नोड ऑफ ए, इट इज अ डी, क्लियर। तो ये बन गया आपका ए का राउटिंग टेबल। अब यही राउटिंग टेबल ए किसको ट्रांसमिट करेगा, डी एंड बी को, ठीक है, ए एंड डी एंड बी को ट्रांसमिट करेगा। क्यों, अगर कोई भी ऐसा नोड हो जहाँ पे बी एंड डी रिच नहीं कर सकता, लाइक ए एंड सी, बिकॉज ए डायरेक्टली सी को रिच नहीं कर सकता, तो जब बी का भी ऐसा हो सकता है कि ऐसा बहुत सारा बी का भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि वो रिच नहीं कर सकता है ऐसा कुछ नोड को, तो अगर उसको ए का कोई राउटिंग टेबल या डी से या सी से कोई राउटिंग टेबल उसको मिलता है फ्रॉम द नाइबरिंग नोड्स, तो दे फ्रॉम इस नाइबरिंग नोड से जो भी उसको राउटिंग टेबल मिलता है उसको पता चल जाएगा, ओके मैं सी तक या मैं ए को पता, अगर जस्ट टेक एन एग्जांपल, ए डायरेक्टली सी तक पहुंच नहीं सकता एंड डी एंड बी ने अपना राउटिंग टेबल ए के साथ शेयर किया, क्यों, डी का नाइबरिंग नोड्स ए है, डी का भी नाइबरिंग नोड्स ए है, ठीक है। अब ए को पता है कि वो डायरेक्टली पहुंच नहीं सकता, बट जब उसको डी एंड बी का राउटिंग टेबल मिला तो उसको पता चला कि ओके मैं डायरेक्टली पहुंच नहीं सकती, बट मैं थ्रू डी एंड थ्रू बी में पहुंच सकती हूँ, क्योंकि उसके पास बी एंड डी का राउटिंग टेबल उसके पास होता है, ठीक है, क्योंकि उसने बी एंड डी ने शेयर किया होता है, तो उसको पता है कि अच्छा ठीक है मैं सी तक डायरेक्टली नहीं पहुंच सकती, बट इनडायरेक्टली थ्रू सम अदर राउटर आई कैन रीच टू द सी। तो ये होता है, बिकॉज ऑफ दैट the each and every router share its routing table to its neighboring nodes, not to, ये बस नाइबरिंग नोड्स को ही शेयर करता है, ना कि दैट नोड को जिसको वो रीच नहीं कर सकता, जस्ट टेक माइंड इट, क्लियर, ये दिमाग में रखो। अब ये हो गया ए का, बी का क्या है, बी का राउटिंग टेबल अभी हम देखते हैं, ठीक है। बी का राउटिंग टेबल पे क्या है, बी से ए तक, बी से अभी सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, ए बी सी डी लिख के रखा यहाँ पे, ठीक है। अब बी से ए तक रीच करने के लिए क्या है, ए हो गया हमारा डेस्टिनेशन, बी से ए का डेस्टिनेशन का कॉस्ट क्या हुआ 2, एंड इसका नेक्स्ट नोड क्या है ए, तो ए हो गया, आपने यहाँ पे ए लिखा, ठीक है। अब नेक्स्ट बी से बी का डिस्टेंस क्या हुआ, बी को इस ट्रांसमिट करना है, तो इसका क्या हो गया 0, तो वहाँ पे नेक्स्ट नोड भी बी है, नो नीड टू थिंक अबाउट इट। नाउ बी से अभी हमें सी को जाना है, बी से हमें सी जाना है, तो अगर ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, हाँ डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट दैट मीन्स व्हाट, हम डायरेक्टली ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो सी हो गया डेस्टिनेशन, इसका कॉस्ट कितना हुआ 3, और इसका नेक्स्ट नोड क्या था, बी का नेक्स्ट नोड कहाँ पे आपने ट्रांसमिट किया, सी, तो इसमें आप सी डालो, क्लियर। अब बी से डी तक जाना है, बी से डी कनेक्टेड है, यस डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे डी से डेस्टिनेशन, उसका कॉस्ट लिखिए 7, एंड इसका नेक्स्ट हो गया डी। तो इस तरह से आप बाकी दो का भी आप प्रिपेयर करोगे, बाकी दो का भी आप प्रिपेयर करोगे। अब देखिए अभी आप सी में भी देखिए कि सी से एक तक जाने का डायरेक्टली कनेक्शन कुछ है नहीं, तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, इन्फिनिटी एंड डैश, वाई, सी से अभी एक, ये हो गया सी का राउटिंग टेबल, ये हो गया सी का राउटिंग टेबल, ठीक है। यहाँ पे हमने इन्फिनिटी मैंने क्यों लिखा, यहाँ पे मैंने इन्फिनिटी क्यों लिखी मैंने यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज सी से ए तक जाने का डायरेक्टली कोई पाथ नहीं है, जब सी से ए का डायरेक्टली पाथ नहीं है, आई डोंट नो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इट, एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ इट, अगर आपको एक्चुअल डिस्टेंस नहीं पता, दैट मीन्स व्हाट, यू डोंट नो द नेक्स्ट नोड ऑफ इट, उसका दैट मीन्स आपका उसका नेक्स्ट होप, या नेक्स्ट होप मतलब कितना डिस्टेंस, कितने के बाद, कितने होप के बाद, कितने डिस्टेंस के बाद आपको नेक्स्ट नोड मिलता है, ठीक है, तो उसका हमें नहीं पता, तो दैट मीन्स मैंने यहाँ पे डैश किया है। तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप क्या था, मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट स्टेप इज योर क्रिएटिंग द टेबल। तो क्रिएटिंग द टेबल मैंने क्या लिखा है, इनिशियली द राउटिंग टेबल इज क्रिएटेड फॉर ईच राउटर that contains at least 3 types of information such as final destination of the packet, that is 2 जो मैंने लिखा था, 2 indicates your final destination of the packet, उसके बाद हो गया था cost and the next router, थर्ड हो गया the next router और the next hope भी हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, और इज सेकंड स्टेप अपडेटिंग द टेबल, ठीक है। अब क्या है, ये जो आपने टेबल बनाया है, जो आपने टेबल बनाया, इट मे नॉट बी योर्स, जो भी आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, इट मे हैपन कि
इट इज नॉट मे बी योर शॉर्टेस्ट पाथ। क्या बता रही हूँ, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये शॉर्टेस्ट पाथ ना हो, ठीक है। यहाँ पे भी आप शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हो, ये बस मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, क्लियर। बट यहाँ पे हमें नहीं पता है कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है या नहीं है, ठीक है। इट में हैपन क्या घुमा के जा रहे हो, एक राउटर बीच में लेके जा रहे हो तो वो शॉर्टेस्ट निकल गया, ठीक है नहीं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पे आप जस्ट टेक एन एग्जाम्पल लिया, ओके मैं स्टेप बाय स्टेप देखूंगी। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एवरी 30 सेकेंड के बाद ये राउटिंग टेबल अपडेट होता है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर एवरी ए का जब ये राउटिंग टेबल आया, इसने डिजाइन किया, ए एवरी 30 सेकेंड के बाद अपना राउटिंग टेबल अपडेट करता है, ठीक है। वो अपडेशन कब तक चलेगा, n-1, कब तक चलेगा, n-1, n हो गया नंबर ऑफ राउटर्स। तो यहाँ पे कितने राउटर्स है आपके, 4, ABCD -1, दैट मीन्स व्हाट, n4-1, 4-1 मतलब 3 बार। तो 3 बार आपको अपडेट कर सकते हो, मतलब आफ्टर 3 अपडेशन यू विल गेट द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ ईच राउटर्स डिस्टेंस फ्रॉम इट्स डेस्टिनेशन, ठीक है। ए का आपको अगर राउटर ए का अगर आपको देखना है इसका शॉर्टेस्ट पाथ, वो भी आपको इसके लिए 3 बार आपको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि कितने तक आप अपडेट कर सकते हो, n-1। तो सी कैसे करना है, स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या करना है, जस्ट सी दिस इज योर नेटवर्क, जो मैंने अभी दिखाया था वही नेटवर्क है यहाँ पे। ये हो गया आपका जो आपने डिजाइन किया है, ठीक है। डिजाइन किया है, ए से ए का 0, ए से बी का 2, ए से सी का हमें डिस्टेंस नहीं पता, ठीक है। इट इज नॉट द एक्चुअल वन, ये अपडेटेड वाला है। ये कौन सा टेबल है, ये अपडेटेड वाला टेबल है। वो अपडेट आपने कैसे किया, ठीक है, बिकॉज हमारे पास जो टेबल था ए का, क्योंकि हम किसका भी राउटर का निकाल रहे हैं डिस्टेंस, राउटर ए का निकाल रहे हैं, राउटर ए का रिमेनिंग राउटर का डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, ठीक है। वो भी आप शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर दो, ठीक है। अब वो फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो एक्चुअल वाला डिस्टेंस था वो क्या था, ए का 0 to ∞1, क्या था, 0 to ∞1। बट ये क्या है, अपडेट क्या है, ये अपडेट हुआ कैसे, आई विल टेल यू। अभी देखिए ए से आप कौन से 2 नोड को आप कौन से राउटर्स को रीच कर सकते हो, ए से बी तक, ए से डी तक, सी तक हम जा नहीं सकते। ए से बी तक आप जा सकते हो, ए से डी तक जा सकते हो डायरेक्टली, बस सी तक आप डायरेक्टली जा नहीं सकते। तो आप क्या करो यहाँ पे, फ्रॉम यहाँ पे बी का और डी का जो टेबल है, ए और बी का जो बी एंड डी, बी का क्या था 2037, डी का क्या था 1711, यहाँ पे बस लिख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या करो आप, यहाँ पे बस आप बीच का जो देख रहे हो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे, ठीक है। बी का डिस्टेंस एंड डी का डिस्टेंस टेबल जो था आपके पास वो यहाँ पे आप लिख लीजिए, ठीक है। और उसके नीचे आप क्या लिखो, कॉस्ट ऑफ ए टू बी का डिस्टेंस कितना था यहाँ पे 2, ठीक है। अभी आपको शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड आउट करना है बहुत इजीली मैं बताती हूँ। यहाँ पे कैसा है, जस्ट टेक एन एग्जांपल। अभी आपको जो पहला जो आपका ये मिला फ्रॉम बी, इसका नीचे मैंने क्या लिखा, ए टू बी तक जाने के लिए आपका डिस्टेंस कितना है 2, और ए टू डी तक डिस्टेंस क्या है 1। कि हमने ये 2 टेबल क्यों लिया, बिकॉज ये दोनों ही ए रीच कर सकता है, सी रीच नहीं कर सकता, सी तक वो रीच नहीं कर सकता डायरेक्टली, ठीक है। इससे मैंने ये दोनों लिया, तभी ए से बी तक और ए से डी का डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अभी कैसा है, अभी आपको बस कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, विच इज द शॉर्टेस्ट वन, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखो कि ए का तो 0 ही है, तो आप वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। ए से ए का जो डिस्टेंस है वो 0 है, इससे लोएस्ट कुछ डिस्टेंस नहीं हो सकता, तो अभी आप 0 लिखते हो, ठीक है। अब क्या है, अभी ये जो पहला जो ये आप वो रिमूव कर दीजिए। अभी आप क्या करो, यहाँ पे आपको बस अभी क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, ए टू बी का 2 है, ठीक है, ए टू बी का 2 है, 2 + 0। अभी मुझे बी का फाइंड आउट करना है, ठीक है, ए से बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ए से बी का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ए से बी का फाइंड आउट कैसे करोगे, 2 + 0 2, आप प्लस कीजिए, 2 + 0 2 and 1 + 7 8, which is the shorter one, 2। कैसे फाइंड आउट किया, सी कॉस्ट ऑफ रीचिंग द डेस्टिनेशन बी फ्रॉम राउटर ए। तो एक तो कौन सा रूट होता है, ए टू बी 2 है, और एक कौन सा रूट है, ए टू डी, डी टू बी। तो कितना हुआ प्लस करके 8। तो यही मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे फाइंड आउट नहीं यहाँ पे नहीं देखे, आप यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। अब अगर डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम पे क्या दिया हुआ है,
बी तक रीच करने के लिए 2 रूट्स आर देयर, A to B that is 2 and A to B D to B that is means what 1 plus 1 plus 7 is 8, कितना होता है 8, which is the shorter one, A to B। तब यहाँ पे क्या लिखोगे 2, यहाँ पे क्या लिखोगे आप 2, लिख दिया हुआ। तो यहाँ पे डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बीच वाले डायग्राम से भी कर सकते हो। अब हमारा क्या है, अभी अभी हमें सी का देखना है, तो सी तक रीच करने के लिए हम बी से भी जा सकते हैं। कैसे, अभी हमें ए टू बी का पता है हमें कितना है cos 2, ठीक है, 2 + 3 5, ए टू अभी हम डी से भी जा सकते हैं, तो ए टू डी क्या हो 1, 1 + 11 12 विच इज द शॉर्टर वन 5, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे 5। तो अब अगर आपको टैली करना है यू कैन ऑल्सो टैली फ्रॉम हियर। तो अभी डी तक जाने के लिए, सी तक जाने के लिए क्या है 1 ए टू डी डी टू सी कितना होता है 12, और एक रूट कौन सा है बी से, ए टू बी बी टू सी कितना होता है 5, तो कौन विच इज द शॉर्टर वन 5। क्लियर, एनी क्वेरी, एनी क्वेरी, एनी क्वेरी, एनी क्वेरी, ओके। नाउ नेक्स्ट अभी हमारे पास क्या है, अभी कौन सा रह गया डी। अभी डी तक पहुंचने के लिए हम बी से भी जा सकते हैं, ठीक है, बी से भी जा सकते हैं। तो ए टू बी का डिस्टेंस हमें पता है कितना है 2, अब 2 + 7 9, और ए अभी डी तक जाने के लिए डायरेक्टली एक रूट है, डायरेक्टली रूट हमारे पास है 1 है ए टू डी के लिए, उसका कॉस्ट कितना है 1, 1 + 0 1 विच इज शॉर्टर वन 1, तो आप यहाँ पे 1 लिखिए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट अपडेटेड टेबल, राउटिंग टेबल ऑफ योर। तो पहला जो था, पहला स्टेप पे ये आपका फर्स्ट राउटिंग टेबल था, ठीक है, जो आपने कैलकुलेट किया था ए का, ठीक है, ये ए का आपने कैलकुलेट किया था, ठीक है। सेकंड स्टेप पे क्योंकि आप 3 बार कर जा सकते हो, 3 स्टेप पे जा सकते हो, क्योंकि मैं आपके कितने बार अपडेट कर सकते हो मैंने बोला 3 बार। ये हो गया पहला जो आपने पहले बार किया था। सेकेंड बार कब किया आपने, दिस इज योर सेकेंड टाइम, ठीक है, दिस इज योर सेकेंड टाइम। ये हो गया राउटर ए का। अब राउटर बी का देखते हैं, ठीक है। अब राउटर बी का कैसा है, राउटर बी का अगर बी तक अगर आपको पहुंचना, अभी आप देखेंगे राउटर बी का, बी कौन कौन से लिंक तक पहुंच सकता है, वो तीनों को तक पहुंच सकते हैं, बी से ए तक, बी से डी तक, बी से सी तक। अभी आप क्या करो, ए का, बी, सी का एंड डी का यहाँ पे लिख लीजिए, आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। ए का, सी का एंड डी का कॉस्ट जो था डिस्टेंस फ्रॉम बी, वो आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए। तो अब वो कहाँ से आपने कॉपी पेस्ट किया है, जो सबसे पहले आपने कैलकुलेट किया था, जो सबसे पहले आपने कैलकुलेट किया था ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी का, ये हो गया आपका सी का, ये हो गया आपका ए का, ठीक है। तो ये तीनों का डायग्राम, तीनों का कॉस्ट जो आप यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। जो आपने यहाँ पे पेस्ट किया, अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, दिस इज द अपडेटेड वन। ये हो गया, मैंने जो ये टेबल जो बनाया है दिस इज द अपडेटेड वन, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट किया अभी यहाँ पे देखिए। अब डी से, सॉरी ये राउटर डी का लिखा, अभी कैसा है, अभी यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे कैसा है, बी से हम डायरेक्टली ए तक जा सकते हैं, ठीक है। तो बी से ए का डिस्टेंस कितना है 2 है, बी से सी का डिस्टेंस क्या है 3, बी से डी का डिस्टेंस क्या है 7, ठीक है, ए का, सी का, डी का। तो ये तीनों को आप डायरेक्टली बी से आप ये तीनों राउटर को डायरेक्टली आप पहुंच सकते हो, ठीक है। तो उसका रूट भी मैंने यहाँ पे, उसका कॉस्ट भी यहाँ पे लिखा। अब आपको क्या करना है, बस कैलकुलेट करना है, ठीक है, विच इज द शॉर्टर वन, ठीक है। अब 2 + 0 ए का पहले देखते हैं, बी का ए का डिस्टेंस, ठीक है। तो बी से ए का डिस्टेंस डायरेक्टली हम पहुंच सकते हैं 2 + 0 2, ठीक है। अब बी से अगर ए तक पहुंचना तो सी के थ्रू भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो बी से सी का भी डिस्टेंस पता है 3 + इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है तो बहुत बड़ा हो सकता है, तो इन्फिनिटी मतलब मोर देन योर 2 जो यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया था, तो ये इन्फिनिटी है तो मतलब इससे भी बड़ा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कॉस्ट बी से ए तक जाने के लिए हम डी के थ्रू भी जा सकते हैं, देखो यहाँ पे डायग्राम पे भी। तो बी से डी का डिस्टेंस हमें पता है 7 + 1 8, तो विच इज द शॉर्टर वन, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे इन्फिनिटी आई, यहाँ पे 8 आया, विच इज द शॉर्टर वन 2। तो यहाँ पे आप क्या लिखो 2 लिख लीजिए, ठीक है 2। नाउ नेक्स्ट इज योर, नेक्स्ट कौन सा है हमारा अभी, नेक्स्ट इज योर बी से हमें बी तक जाना है। तो बी से हमें बी तक जाना है, शॉर्टर तो 0 ही है, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, तो 0 रखेंगे। अब बी से सी तक जाना है, बी से सी तक जाना है, कितना हुआ 2 से इन्फिनिटी ज़्यादा होता है, 2 + इन्फिनिटी ज़्यादा होता है, 3 + 0 3, 7 + 11 18, तो विच इज द शॉर्टर वन 3। तो यहाँ पे आप क्या करो 3 लिखो, हो गया। तो उसका नेक्स्ट नोट क्या था,
उसका नेक्स्ट नोड सी आया, क्योंकि आपको बी से सी तक जाना था तो उसका नेक्स्ट नोड क्या था, सी था। यहाँ पे क्या थी, इसका नेक्स्ट नोड क्या हुआ, ए था। ठीक है, बी से ए तक जाने का नेक्स्ट नोड क्या हुआ यहाँ पे, ए। ठीक है, अब देखिए डी तक हमें जाना है, बी से डी तक जाना है, तो बी से डी तक जाना है, इसका प्लस कीजिए, 2 + 1 3, 3 + 11 14, 7 + 0 7, विच इज द शॉर्टर वन 3। अभी यहाँ पे देखिए बी से डी तक जाने के लिए शॉर्टर कौन सा निकला, बी टू ए। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे हो गया डेस्टिनेशन डी, शॉर्टर रूट का डिस्टेंस कितना हुआ 3, एंड नेक्स्ट नोड मैंने ए क्यों लिखा, बिकॉज टू रीच टू द ए आई हैव द नेक्स्ट नोड ऑफ बी इज ए, द नेक्स्ट नोड ऑफ बी इज ए। ठीक है, समझ में आया एवरीवन। तो नेक्स्ट नोड ऑफ बी टू डी का रीच करने के लिए कौन सा रूट आपने यूज किया, बी ए डी, जिसका कॉस्ट कितना था 3, तो उसका बी का नेक्स्ट नोड क्या हुआ यहाँ पे, टू रीच टू दी डेस्टिनेशन डी। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसी तरह से यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दी डिस्टेंस, राउटर सी का भी आप कैलकुलेट करोगे एंड डी का भी कैलकुलेट करोगे। एनी क्वेरी, एनी क्वेरी इन इट, क्वेरी है, क्वेरी है एनीवन, एनीवन इज हैविंग एनी क्वेरी, नहीं है, ओके। अभी क्या करते हैं, अभी हो गया सेकंड स्टेप, अभी सेकंड अपडेट हो गया। हमें कब तक अपडेट करते रहना है, n-1, n-1 मतलब हाउ मेनी आर देयर, n-1, तो हाउ मेनी आर देयर, और एक बच गया हमारा, और एक बचा है, कौन सा, थर्ड स्टेप। ठीक है, थर्ड स्टेप पे और एक बार हम अपडेट करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारा शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब आपका n-1 खत्म हुआ, n-1 खत्म होने के बाद जो भी राउटिंग टेबल निकालता है ईच राउटर का, दैट मीन्स दैट इज द फाइनल राउटिंग टेबल। ठीक है, ऑफ ईच रूट, ईच राउटर। ठीक है, अब इस थर्ड स्टेप पे अभी कैसा है, एस ए, अभी सबसे पहले भी हम क्या करेंगे, राउटर ए से स्टार्ट करेंगे। अभी डायग्राम में हमें पता है ए बी एंड डी से रीच कर सकते हैं, तो उसी दो का राउटिंग टेबल का हम ये डिस्टेंस लेंगे, ए एंड बी का, सॉरी बी एंड डी का राउटिंग टेबल करेंगे। अभी ये जो है बी एंड डी का, वो कहाँ से लिया आपने, पहले वाले स्टेप से लिया या दूसरे वाले स्टेप से लिया, दूसरे वाले स्टेप से लिया, क्योंकि क्या है सेकंड स्टेप पे अपडेट हुआ ना आपका बी एंड डी राउटिंग टेबल अपडेट हुआ है आपका, कहाँ है आपका बी का राउटिंग टेबल, ये आपका अपडेट आपने किया है, यही आपने जो सेकंड स्टेप में जो अपडेट किया है वही राउटिंग टेबल आप फॉलो करोगे थर्ड पे। अब अगर फोर्थ स्टेप तक जाते हो तो थर्ड वाला फोर्थ पे फॉलो होगा, फिफ्थ स्टेप तक जाते हो तो फोर्थ वाला फिफ्थ को रेफर होगा। ठीक है, तो अपडेटेड टेबल आप रेफर करोगे, नॉट द फर्स्ट वन। क्लियर, तो अभी आपका अपडेटेड क्या था, बी का 2033। ठीक है, 2033, तो ये हो गया 2033। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो बी का कौन सा टेबल मैंने लिया, 2033, और डी का भी हमने अपडेटेड वाला ही लिया है, 1310। ठीक है, इसे अपडेटेड और जो हमें सेकंड स्टेप से मिला है, तो सी यहाँ पे लिखा हुआ है, ईच राउटर एक्सचेंजेस इट्स डिस्टेंस वेक्टर ऑब्टेन इन स्टेप 2 विथ इट्स नाइबर्स। तो ये जो स्टेप 2 से जो राउटिंग टेबल मिला है आपको, जितने भी राउटिंग टेबल मिले हैं वो क्या करेंगे, एवरी राउटर शेयर द अपडेटेड राउटिंग टेबल टू इट्स नाइबरिंग नोड्स, नाइबरिंग राउटर्स। क्लियर, तो अभी हमने क्या किया, सेम अभी हम फिर से हम वही करेंगे जो मैंने पहले बताया है, कि अभी हमें क्या करना है, ए का फाइंड आउट करना है डिस्टेंस अब ए बी सी डी का, ए बी सी डी तक का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए बी सी डी लिखा, यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करना है, ये अपडेटेड वाला है जो थर्ड स्टेप है मेरे, वो कैसे फाइंड आउट हुआ, हमें पता है ए टू बी तक रीच करने के लिए 2 है, ए टू डी तक रीच करने के लिए 1 है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ए से ए का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट तो 0 ही है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। अब क्या है, बी ए से बी तक का जाने का कौन कौन सा डिस्टेंस है, ए से बी तक का जाने का क्या है, 2 + 0 2, ए टू डी का क्या है, यहाँ पे 1 है, उस 1 + 3 कितना होता है 4, विच इज द शॉर्टर 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से देखेंगे ए से सी तक जाने का क्या डिस्टेंस है, ए टू बी बी टू सी, तो ए टू बी क्या कितना है, 2 2 + 3 5। अभी ए टू डी सी तक जाने के लिए और एक रूट कौन सा है, ए टू डी डी टू सी, तो कितना हुआ 1 + 10 11, तो विच इज द शॉर्टर 1 5, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 5। नाउ ए टू डी तक जाने के लिए कौन सा शॉर्टर पाथ है, ए टू डी ए टू बी बी टू डी, ए टू बी बी टू डी, तो कितना हुआ 2 + 3 5,
A to D तक डायरेक्टली जा सकते हो आप। यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1 + 0 1, विच इज द शॉर्टर 1, 5 और 1 1। अब ये क्या है, अभी ये क्या निकला, दिस इज नेक्स्ट नोड। तो नेक्स्ट नोड क्या था इसका, A से 1 तक जाने का नेक्स्ट नोड A ही है। A to B तक जाने का नेक्स्ट नोड कौन सा आपने चूज किया, ये चूज किया था। नेक्स्ट नोड क्या था, B ही था। A से C तक का जाने का, A से C तक का जाने का आपने नेक्स्ट नोड कौन सा यूज किया, कौन सा रूट यूज किया, A to B, B to C, ये आपने फर्स्ट वाला यूज किया। तो फर्स्ट वाला चूज जब आपने किया तो A का नेक्स्ट, C तक जाने का नेक्स्ट नोड क्या था A का, A to B था आपका। तो यहाँ पे आपने क्या किया, B लिखा। और A से D तक का जाने का रूट, जाने का जो डिस्टेंस था, जाने का जो रूट था, उस पर आपका कोई इंटरमीडिएट नोड राउटर था नहीं था। तो नेक्स्ट नोड क्या था, D ही था, तो D आप लिखोगे। So in this way you are going to complete this distance vector routing algorithm. If you see this example, यहाँ पे मैंने 4 ही नोड्स लिए, तो 4 ही राउटर्स के बेसिस पे कितने बार अपडेट कर सकते हो आप, 3 बार। 5 है तो 5 - 1 4, 4 times you have to update the table of each। ठीक है, this is give your distance vector routing। तो ये एग्जाम्पल जो है, दिस इज योर, इट इज इन योर बुक। वो मैंने थोड़ा शॉर्टकट, मैंने एक एग्जाम्पल इजी वाला लिया था, ये आपके बुक पे है। ठीक है, ये आपके बुक पे है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ईच राउटर हैज इट्स ओन राउटिंग टेबल which is shared to its neighboring nodes only, not to any other which is not reached by the router। clear? और यहाँ पे आप शेयर क्यों करते हो, अगर क्वेश्चन आया तो आप क्या बोलोगे, बिकॉज अगर मुझे कोई, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये डायग्राम पे देखिए, ए से ई का आप डायरेक्टली रीच नहीं कर सकते। अगर आपको डी सी बी जो ए से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इन तीनों का राउटिंग टेबल अगर ए के साथ शेयर होता है, तो ए को पता चलता है कि ई तक जाने के लिए कोई दूसरा रूट है या नहीं है। ठीक है, तो ये बिकॉज ऑफ दिस द राउटिंग टेबल इज शेयर्ड टू its neighboring, every router share its routing table to its neighboring nodes, only neighboring nodes। any query, any query, any query? do one thing, ऐसे भी आपको एग्जाम पे आने वाला है, तो ये दोनों स्टेप्स लिख के रखिए, राइट इट डाउन, राइट डाउन दिस स्टेप। सबसे पहले आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो टेबल। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हो आप, क्रिएट करते हो टेबल। तो क्रिएट जब करते हो तो सबसे पहले आप क्रिएटिंग में क्या रहता है आपका, वो पहला अपडेट होता है। क्रिएट जब टेबल करते हो, उस पर तीन चीजें से बनता है वो टेबल। एक तो डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन, कॉस्ट ऑफ सोर्स टू डेस्टिनेशन, एंड लास्ट वन इज योर नेक्स्ट, कौन सा होगा नेक्स्ट राउटर। यू गेट क्रिएटिंग द टेबल। सेकंड स्टेप पे क्या होता है आपका, कि आप अपडेट करते हो। तो अपडेट कितने बार कर सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है, दिस स्टेप इज रिपीटेड अप टू n-1 टाइम्स। कितने बार, n-1 टाइम्स। n हो गया नंबर ऑफ राउटर्स, कितने राउटर्स प्रेजेंट हैं। एनी क्वेरी इन दिस पॉइंट, एनी क्वेरी? Written everyone? Written? Everyone noted these two steps, step 1 and step 2? Yes, okay. Now do one thing. This is the diagram. This is the diagram. Draw this diagram, फटाफट diagram draw करो, फटाफट diagram draw करो. Write down the example. Anyway, I'm going to share you. Draw this diagram. Okay, Amit, you have not drawn? You have not written? You have not noted the earlier one?
Now, drawn everyone? Drawn? Okay. Now, do one thing. ये राउटिंग टेबल बनाओ. ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप. ठीक है. फर्स्ट स्टेप पे आपने क्या किया? राउटिंग टेबल क्रिएट किया. फर्स्ट अपडेट में क्या रहता है कि अब आपका जो नियरेस्ट नोड से जो डिस्टेंस हुआ पहले नेटवर्क पे पहले आपने क्या क्या टेबल बनाया होंगे. ठीक है. उसके बाद जो आपका फर्स्ट अपडेट जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट कैसे होता है? आपका जो नियरेस्ट नोड से जो आपका डिस्टेंस हुआ आप यहाँ पे लिखते हो. ठीक है. तो राइट इट डाउन, कॉपी पेस्ट इट. Noted everyone? Any query? Noted everyone? Okay. Do one thing. This is your second step. आप अपडेट सेकेंड बार कैसे करते हो. ठीक है. तो एक कॉपी कीजिए एट राउटर ए का कॉपी कीजिए एंड होमवर्क फॉर यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रोसीजर स्टेप 3 तक कंप्लीट करके आप कल मुझे बताओगे. क्लियर. तो आई एम गोइंग टू आस्क यू ईच राउटर्स ए बी सी डी का फाइनल स्टेप 3 का वैल्यू कितना आया है. आई एम गोइंग टू आस्क यू टुमारो. क्लियर. तो पहला स्टेप एटलीस्ट, क्योंकि सेम स्टेप आप कैलकुलेट फॉलो करने वाले हो स्टेप 3 ऑल्सो एंड फॉर द अदर राउटर्स ऑल्सो. ठीक है. तो डू वन थिंग, यू जस्ट कॉपी पेस्ट इट जो जिस तरह से मैंने कैलकुलेट किया है, सो दैट इट विल हेल्प यू टू सॉल्व दिस वन. तो ये हो गया आपका स्टेप 2 पे. आप क्या कर रहे हो? अपडेट करना. सेकंड अपडेशन चालू किया आपने. ठीक है. तो सेकंड अपडेशन कैसे किया आपने? जो नियरेस्ट नोड है उस दोनों का राउटिंग टेबल का वैल्यू आपने यहाँ पे लिखा एंड उसका डिस्टेंस ए से कितना है वो भी आपने नीचे पे लिखा, कॉस्ट. ठीक है. उसके बाद आपने क्या किया? प्लस किया. बस ABCD इसका प्लस किया. इन दोनों का जो मिनिमम होता है वो आपने यहाँ पे लिखा. तो ये हो गया. और उसका नेक्स्ट नोड क्या है वो भी आपको पता चलता है. तो इसी तरह से मुझे कल एनी हाउ आई वॉन्ट यू दिस स्टेप 3 का, क्योंकि हम ओनली स्टेप 3 तक एक्सटेंड कर सकते हैं बिकॉज देयर आर 4 नोड्स आर देयर, 4 आउटर्स आर देयर, 4-1 3 बार ही हम अपडेट कर सकते हैं. तो लास्ट नंबर 3 का मुझे ये चाहिए आपका कि ए का फाइनल क्या था आया है, बी का फाइनल क्या है, सी का फाइनल क्या है, डी का फाइनल क्या है, प्लस उसका नेक्स्ट हो या राउटर क्या था. तो ये टेबल ए बी सी, ए का, बी का, सी का, डी का चारों मुझे चाहिए. Then those who have completed, mark your attendance in the chat box. Thank you.